learned in our previous chapter, I have just written two important points on the board which you have to note down in your notebooks. This is just for you. हमने ये सब कुछ पढ़ लिया है, but you have to note it down because it is going to help you, and this you have to write in your answers when they are going to ask. ठीक है? So just to summarize, whenever there is a change in the state of matter, it happens because of the change in temperature. Whenever there is an increase in temperature, there will be increase in the kinetic energy of the particles of matter, due to which the speed of the particles of the matter will increase, and thus the vibrations will be more vigorous, and so the particles will tend to be apart from each other, and thus we can say that this heat which we are applying, we are increasing the temperature, that means we are applying heat. This heat that we are applying is actually overcoming the forces of attraction. जो भी forces of attraction है, अगर उन force of attraction को हमें break करना है तो हमें उससे ज़्यादा energy apply करनी पड़ेगी, तो ही तो हम उन forces of attraction को break कर पाएंगे. उनके बीच में जो भी energy से वो एक दूसरे को पकड़ के रख रहे हैं, हम अगर उससे भी ज़्यादा एनर्जी उन पर अप्लाई करेंगे तो ही वो एनर्जी ओवरकम हो पाएगी, वो फोर्सेस ओवरकम हो पाएंगे. सो जस्ट यू हैव टू नोट इट डाउन दैट एनर्जी सप्लाइड बाय द हीट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी, हीट एनर्जी. तो एनर्जी सप्लाइड बाय द हीट overcomes the forces of attraction between the particles, and therefore solids get converted into liquids. The next step we are going to take is the study of interconversion of three states of matter. As we already discussed, the solids can convert into liquid states, and the liquids can convert into gaseous state. When solid is converting into liquid, we call it melting. Yes, जब भी solid liquid में convert होता है तो हम ऐसा कहते हैं that the solid is melting, है ना. बट मेल्टिंग का दूसरा नाम होता है फ्यूजन, दैट इज FUSION. सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग मेल्टिंग वी विल राइट फ्यूजन. Conversion of solids into liquids is called as fusion. Now what will you call the conversion of liquids into gases? जब भी liquids gases में convert होते हैं तो आप उसको क्या बोलोगे? Yes, it is called as vaporization. Liquids getting converted into gas, this process is vaporization. Sometimes what happens, these gas again convert into liquid. तो जब गैस लिक्विड में कन्वर्ट होती है वापस से, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन. Condensation. And what happens when liquid converts into solid? For example, water converts into ice. मतलब liquid जब solid में convert होता है तो उस method को हम simply कहते हैं solidification. When liquid is getting converted to solid, it is called as solidification. Okay? Solid to liquid is called fusion. Liquid to gas is called vaporization. Gas to liquid conversion is condensation, and liquid to solid conversion is called as solidification. But what happens sometimes, there are a few examples in which this solid is directly converted into gas. बीच में liquid step गायब हो जाती है. तो ये जो process होता है जिसमें solids directly convert हो जाते हैं into gases, या फिर gases directly convert हो जाती है into solids, इस process को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? कभी सुना है? Any guess? This is called as sublimation. Sublimation. That is conversion of solid state into gaseous state without getting converted into liquid state, or vice versa. Solid to gaseous state or gaseous state to solid state without converting into liquid state is called as sublimation. This process is called as sublimation. For example, मैं आपको कुछ examples देती हूँ. We take an example of camphor.
सबने देखा होगा, कपूर जिसको कहते हैं। यू मस्ट ऑल्सो हैव सीन नेफ्थलीन बॉल्स, जिसको हम कबर्ड्स में और क्लोथ्स में और इन सब चीज़ों में रखते हैं टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ पेस्ट्स एंड इंसेक्ट्स, है ना। आप देखेंगे जब आप उन नेफ्थलीन बॉल्स को, एक और एग्जाम्पल है यू नो ओडोनिल बार जो हम यूज़ करते हैं बाथरूम्स में फॉर फ्रेग्रेंस एंड फ्रेशनेस। आप देखते हैं थोड़े टाइम बाद वो जो ओडोनिल का वाइट कलर का बार होता है, इट कंटेन्स नेफ्थलीन, धीरे धीरे छोटा होता जाता है एंड इवेंचुअली आफ्टर अ मंथ गायब हो जाता है। कहाँ चला गया? वो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता हुआ आपको दिखा नहीं। वो सॉलिड जो होता है वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होकर डिफ्यूज हो जाता है इनटू द एयर। सेम थिंग हैपेंस विद कैम्फर और कपूर। जब आप उसको ओपनली एयर में रखते हैं तो वो अपने सॉलिड स्टेट से डायरेक्टली गैशियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। यू कैन नॉट सी द लिक्विड स्टेट, कहाँ गया भाई, हवा में उड़ गया, गायब हो गया। वो गायब नहीं होता है, वो एक्चुअली सब्लिमेट हो जाता है। दिस इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन। Sometimes in some examples also happens that gases get directly converted into solid। जैसे आप कोई गैस को ठंडा करते हो तो वो गैसेस कन्वर्ट हो जाती हैं डायरेक्ट इनटू सॉलिड विदाउट कमिंग इन लिक्विड स्टेट। एक एक्टिविटी आपकी बुक में है अमोनियम क्लोराइड की। अमोनियम क्लोराइड इज अ सब्सटेंस, इट इज अ सब्लिमेबल सब्सटेंस। जब हम अमोनियम क्लोराइड के क्रिस्टल्स या पाउडर्स को गर्म करते हैं तो वो गर्म करने के बाद वेपोराइज हो जाते हैं विदाउट कमिंग इन लिक्विड स्टेट, सब्लिमेशन प्रोसेस हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो वेपर्स ऊपर जाके ठंडे होते हैं और किसी सरफेस से टच होते हैं वो वापस से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, अगेन सब्लिमेशन। ठीक है, सो इंटर कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स डायरेक्टली इनटू गैस और कन्वर्जन ऑफ गैस डायरेक्टली इनटू सॉलिड इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन। अब हम एक नया कंसेप्ट पढ़ेंगे जिसको कहते हैं लेटेंट हीट। ये टॉपिक समझने के लिए आपको एक सिंपल सी एक्टिविटी करनी ज़रूरी है और उस एक्टिविटी को समझ जाएंगे तो आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे कि लेटेंट हीट क्या होती है। क्या करना है हमें, जैसा कि मैंने आपके लिए एक फिगर बनाया हुआ है, यहाँ आपको ऐसे ही सेटअप का एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है। व्हाट वी डिड, वी टुक एन आयरन स्टैंड, ये एक आयरन का स्टैंड है ना। देन वी टुक ट्राइपॉड स्टैंड, उसके ऊपर हमने एक बीकर रखा, बीकर में हमने आइस डाली। आइस का टेम्परेचर चेक करने के लिए हमने थर्मोमीटर लिया। कौन सा थर्मोमीटर लेंगे? लेबोरेटरी थर्मोमीटर, क्योंकि उसकी रेंज ज़्यादा होती है। और फिर इसको हमने बर्नर के ऊपर रखा, बर्नर लेंगे एंड देन विल यूज अ ग्लास स्टिरर ऑल्सो। ठीक है, ये सब कुछ सेटअप लगाने के बाद विल ऑन द बर्नर। बर्नर चालू करने के बाद क्या होगा, धीरे 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 हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो आइस कन्वर्ट होने लग जाएगी वाटर में। ठीक है, तो अब यहाँ ध्यान रखने की चीज़ क्या है, आइस का टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस और लेस। ठीक है, लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस और 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस फॉर्मेशन होता है। अब जब हम यहाँ पर हीट प्रोवाइड कर रहे हैं और आइस कन्वर्ट हो रही है इनटू वाटर, तो टेम्परेचर में इंक्रीज होना चाहिए। यस और नो? कॉमन सेंस क्या कहता है कि अगर हीट कर रहे हैं और आइस वाटर में कन्वर्ट हो रही है, जैसे ही 0 डिग्री से थोड़ा भी टेम्परेचर बढ़ता है, 0.1 डिग्री भी टेम्परेचर बढ़ता है तो आइस वाटर में मेल्ट होने लग जाती है। तो अगर हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब हम बहुत ज़्यादा एनर्जी दे रहे हैं, तो आइस वाटर में कन्वर्ट हो रही है। वाटर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है, मोर देन 0 डिग्री सेल्सियस। अब 0.1 डिग्री सेल्सियस भी लोगे ना तो भी वो आइस उस टेम्परेचर पे वाटर में कन्वर्ट होने लग जाती है, क्योंकि वो 0 डिग्री से ज़्यादा होता है। ठीक है, बट जब आप थर्मोमीटर की रीडिंग लोगे तो आप पाओगे कि जो आइस थी, जैसे ही हमने जब बर्नर ऑन नहीं किया था तब जो आइस का टेम्परेचर था वो 0 डिग्री सेल्सियस था। ठीक है, आप कंटिन्यूसली ग्लास से के जो स्टिरर है, ये जो ग्लास स्टिरर है, इससे आइस को मिक्स करते रहेंगे और ये जो आपका थर्मोमीटर है, इसका जो बल्ब होता है नीचे, वो आइस में इंसर्टेड रहना चाहिए, तो ये आपको करेक्ट टेम्परेचर मिलेगा। ठीक है, अब ये जो आइस थी वो वाटर में मेल्ट होने लग गई। क्या होने लग गई? मेल्ट। लेकिन मेल्ट होने के बाद भी थोड़ा सा मेल्ट हुआ, फिर हमने वापस से रीडिंग चेक की, अब भी उसमें 0 डिग्री दिखा रहा था। फिर हमने थोड़ी देर और गर्म किया, थोड़ी और आइस वाटर में कन्वर्ट करी, अब तो टेम्परेचर
टेम्परेचर बढ़ना चाहिए ना, इतनी सारी हीट दे रहे हैं, फिर भी टेम्परेचर 0 डिग्री दिखा रहा है। फिर थोड़ी देर बाद वापस से चेक किया, अभी थोड़ी आइस बची थी लेकिन वाटर बढ़ गया था, फिर भी टेम्परेचर 0 डिग्री दिखा रहा था। तो सोचने की बात यह है कि इतनी सारी हीट हम प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? हीट एनर्जी, तो टेम्परेचर इंक्रीज होना चाहिए कि नहीं? लेकिन जब यहाँ पर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं और आइस को मेल्ट करते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी टेम्परेचर बढ़ ही नहीं रहा है, 0 डिग्री है। फिर थोड़ी देर बाद जब सारी आइस वाटर में कन्वर्ट हो गई, जब ऑल ऑफ द आइस कन्वर्टेड इनटू वाटर, तब हमको धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ता हुआ दिखा। 1 डिग्री, 1.5 डिग्रीज, 2 डिग्रीज, 3 डिग्रीज, 4 डिग्रीज एंड सो ऑन। ठीक है, अब द क्वेश्चन अराइजेस कि इतनी सारी हीट जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो आखिर गई कहाँ, कहाँ जाके छुप गई? What is happening? So the answer is the heat energy which we are providing is getting used. ये हीट एनर्जी यूज होती जा रही है, किस काम में यूज होती जा रही है? टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो हमने थोड़ी देर पहले ही अभी बोर्ड पे पढ़ा था। टू ओवरकम द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। तो जब तक ये आइस के पार्टिकल्स सारे वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाते, ये हीट एनर्जी इसमें यूज होती जाएगी। ये पार्टिकल्स जो हैं इस हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते जाएंगे और इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ब्रेक करते जाएंगे। जब तक ये सारे सॉलिड के पार्टिकल्स लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाएंगे, तब तक ये हीट एनर्जी यूज होती जाएगी और थर्मोमीटर पे उसकी रीडिंग नहीं आएगी। समझ में आया? तो अब यहाँ पे सिंपल भाषा में अगर बोलें, सादी भाषा में अगर बोलें, तो हमारी हीट एनर्जी गायब होती जा रही है, इट इज गेटिंग हिडन अप। तो कंसिडर दिस that the heat which we are giving to the ice is getting used up by the solid ice particles to break their forces of attraction and to convert into liquid। ये melting के process में जो heat energy है वो use होती जा रही है और temperature हमको thermometer पे दिख नहीं रहा है। तो कहते हैं कि ये जो heat है it is hidden, okay? और इस hidden heat को हम कहते हैं latent heat, क्योंकि लेटेंट वर्ड का मीनिंग ही होता है हिडन। व्हाट डज दिस वर्ड लेटेंट मीन्स? दिस मीन्स हिडन, और लेटेंट हीट मतलब हिडन हीट। तो ये हीट कहाँ जाके छुप रही है? एक्चुअली ये जो हीट है वो पार्टिकल्स यूज कर ले रहे हैं टू कन्वर्ट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, दैट इज फॉर मेल्टिंग प्रोसेस। गेटिंग माई पॉइंट? अब जब सारे के सारे आइस के पार्टिकल्स या सॉलिड पार्टिकल्स लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे, अब उनको हीट की जरूरत नहीं है, अब ये हीट छुपेगी ही नहीं। देयर इज नो नीड फॉर हाइडिंग और being used up. Now you can see the temperature rising on the thermometer. Getting? So this heat which is used by the solids to get converted into liquids, that is for the process of melting, is called as latent heat of fusion. क्या बोलेंगे हम इसको? Latent heat of फ्यूजन। फ्यूजन मतलब मेल्टिंग। तो ये जो हीट हम यूज कर रहे हैं, एक्चुअली हम नहीं, हमारे सॉलिड के पार्टिकल्स यूज कर रहे हैं फॉर मेल्टिंग प्रोसेस। ये हीट छुप जाती है, हिडन हो जाती है, दिखती नहीं है थर्मोमीटर पे, क्योंकि पार्टिकल्स उसको यूज करके मेल्ट हो रहे हैं। समझ में आया? इसीलिए इस हीट को हम कहते हैं हिडन हीट और लैटेंट हीट of fusion, that is heat which is used in the process of melting. Now how will you define melting point? तो melting point is the temperature, कोई भी melting point, boiling point की point की बात कर रहे हैं, मतलब हम particular temperature की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो melting point of any solid is actually the temperature at which the solid is getting converted into liquid at एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उस पर्टिकुलर प्रेशर पे जब कोई भी सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, तो वो जो टेम्परेचर जो होता है एट विच द सॉलिड इज कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड इज कॉल्ड एज इट्स मेल्टिंग पॉइंट। अब मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन पता होने के बाद हमें पता होना चाहिए द डेफिनेशन ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन।
as we studied right before now that what is latent heat of fusion? It is actually the amount of heat energy. Latent heat क्या है? It is the amount of heat energy which is required to convert 1 kg of solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point. ठीक है, किसी भी सॉलिड के मेल्टिंग पॉइंट पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जब 1 kg सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, पूरा 1 kg सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. Please note it down, pause the video, note this down. This is very important. If you have the books, just mark them, mark this activity. This is a very important topic and it is usually asked in exams. Okay? अब एक और बहुत important चीज़ यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं, that is the energy of particles. जब हमारे पास आइस के पार्टिकल्स थे at 0 डिग्री सेल्सियस, तो उनके पास एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी थी. ठीक है, सपोज दे हैड अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी. लेकिन जब ये आइस के पार्टिकल्स वाटर में कन्वर्ट हुए और अभी भी टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस, समझ में आया? क्योंकि बाकी का जो हीट, अच्छा ये अपने आप तो हो नहीं रहा, हम यहाँ पर हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं. ठीक है, तो पार्टिकल्स ऑफ आइस जो थे एट 0 डिग्री सेल्सियस दे हैड अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी. When we provided extra heat energy, this heat energy is acquired by the particles of ice and they got converted into water. समझ में आया? तो अगर हम दोनों पार्टिकल्स की एनर्जी को कंपेयर करें, तो आइस के पास जो एनर्जी है और वाटर के पार्टिकल्स के पास जो एनर्जी है, उन दोनों में डिफरेंस है. आपको सिर्फ ये याद रखना है कि जो पार्टिकल्स ऑफ आइस होते हैं एट 0 डिग्री सेल्सियस, they have less energy as compared to the particles of water at 0 degree Celsius because इन particles ने latent heat को भी absorb किया हुआ है, तो इनके पास extra heat energy है या extra energy है which is hidden and so they are able to convert from solid to liquid. So in short, the particles of water at 0 degree Celsius have more energy as compared to the particles of ice at 0 degree Celsius. क्योंकि ये सब कुछ चल रहा है 0 डिग्री सेल्सियस पे. जब तक एक आइस का क्यूब completely वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाता, ये पूरा सिस्टम जो हमारा चल रहा है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे ही चल रहा है. That is the melting point of ice. Okay? Next. लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन. जैसे हमने फ्यूजन पढ़ा, फ्यूजन का मतलब था मेल्टिंग, वैसे ही अब हम पढ़ेंगे वेपोराइजेशन, मतलब कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस. फॉर एग्जांपल यहाँ जो हम ले रहे हैं वो वाटर है, तो कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर्स. अब मान लीजिए कि आपकी जितनी भी आइस थी वो वाटर में कन्वर्ट हो गई. अब हमारे बीकर में आइस नहीं है, अब हमारे बीकर में है बहुत सारा वाटर. सेम थर्मोमीटर भी है, ग्लास स्टिरर भी है. ठीक है, अब ये जो आइस थी वो बन गई है वाटर. टेम्परेचर राइज हो गया है, धीरे धीरे पानी गर्म होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा. अब आप सबको पता है वाटर बॉईल कौन से टेम्परेचर पे होता है? 100 डिग्री सेल्सियस पे. ओके, अब हम वेट करेंगे इस वाटर के बॉईल होने का. When this water will begin to boil, है ना, ये जो वाटर है वो बॉईल होगा और बॉईल होके कन्वर्ट होगा वाटर वेपर में. बॉईल होने का टेम्परेचर आप जब थर्मोमीटर में चेक करोगे, जैसे ही बॉइलिंग ऑफ वाटर स्टार्ट होगा, हम कंटिन्यूसली स्टिर भी करते जा रहे हैं. डोंट फॉरगेट टू स्टिर ऑल द वाटर विच इज देयर इन द बीकर. कंटिन्यूस स्टिरिंग से हमको करेक्ट रीडिंग मिलती है टेम्परेचर की, नहीं तो टेम्परेचर कम ज़्यादा आता रहेगा. ठीक है, लेकिन अगर हम कंटिन्यूसली उस मिक्सचर को प्रॉपरली मिक्स करते जा रहे हैं तो हमें करेक्ट रीडिंग मिलेगी टेम्परेचर की. तो जब वाटर बॉईल होता है वो टेम्परेचर होता है 100 डिग्री सेल्सियस. बॉइलिंग के बाद क्या बनता है? वाटर वेपर. वाटर वेपर का टेम्परेचर और ज़्यादा होता है, मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस. लेकिन जब हम थर्मोमीटर से चेक करेंगे, जो वाटर वेपर निकल रहा है बाहर, उसका टेम्परेचर जब हम चेक करेंगे तो वो भी हमको
आपको मिलेगा 100 डिग्री सेल्सियस। ऐसा कैसे? अगर वाटर है और वाटर ज्यादा एनर्जी लेके, क्योंकि हम तो कंटिन्यूसली इतनी सारी हीट दे रहे हैं, हीट देते जा रहे हैं, लेकिन टेम्परेचर बढ़ ही नहीं रहा है। अगेन द सेम थिंग कि हम इतनी सारी हीट दे रहे हैं तो टेम्परेचर की रीडिंग तो बढ़नी चाहिए, पर रीडिंग बढ़ ही नहीं रही है, क्योंकि सारी हीट यूज होती जा रही है, या फिर कह सकते हैं वो हिडन हो गई है। और वो हिडन क्यों हो गई है? क्योंकि ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं उस हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने बीच के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक करने के लिए, और वो सारी एनर्जी ये यूज करते जा रहे हैं टू कन्वर्ट इनटू वाटर वेपर। ओके, तो इस हिडन हीट को हम कहते हैं लेटेंट हीट। लेकिन ये लेटेंट हीट किस में यूज हो रही है? वेपोराइजेशन में। तो दिस इज कॉल्ड एज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन में आप यू ना लगाएं तो भी चलेगा, यू लगा देंगे तो भी चलेगा, बोथ आर द करेक्ट स्पेलिंग्स। ओके, नाउ बिल्कुल सेम है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मेथड और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का मेथड, लेकिन इन दोनों की डेफिनेशंस अलग होंगी, क्योंकि एक में हो रहा था मेल्टिंग प्रोसेस और यहाँ पर हो रहा है वेपोराइजेशन प्रोसेस। सो हाउ विल यू डिफाइन? अच्छा, पहले तो वो डिफाइन करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट मतलब बॉइलिंग टेम्परेचर। बॉइलिंग टेम्परेचर क्या होता है? इट इज द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हर डेफिनेशन में एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐड करना ना भूलें, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को खा जाओगे तो मार्क्स चले जाएंगे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐड करना जरूरी है, क्योंकि ये एक एनवायरमेंटल कंडीशन है विच यू हैव टू कीप इन माइंड। फाइन, तो मैं यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन लिख रही हूँ, आपको भी नोट डाउन करनी है। द टेम्परेचर at which liquid gets converted into vapors at atmospheric pressure is called as the boiling point of the liquid. Okay, clear? Now you can pause the video, copy the definition. It is important definition, it is asked in exams. After this we will write the definition of latent heat of vaporization. How to define latent heat of vaporization? So latent heat of vaporization is the amount of heat energy, the amount of heat energy required to convert 1 kg. You have to be very specific about the amount. To be very specific, it is the amount of heat energy required to convert 1 kg of liquid into gas or vapors at atmospheric pressure at its boiling point, क्योंकि ये सब boiling point पे ही हो रहा है, at its boiling point is called as latent heat of vaporization. This is the definition of vaporization. After noting this definition, we will go on the amount of energy which is possessed by both the types of particles. Please pause the video and write the definitions. Very important. Now these are the particles of boiling water. Boiling water. Boiling water कब होगा? कौन से टेम्परेचर पे? We know boiling point of water is 100 degrees Celsius. They are getting converted into particles of water vapor.
वेपर। ये भी किसमें बन रहे हैं? एट 100 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि अभी सारा वाटर पूरा कंप्लीटली गैसेस में कन्वर्ट नहीं हो गया, प्रोसेस चल रहा है। और जब तक प्रोसेस चल रहा है टेम्परेचर रहेगा 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन टेम्परेचर तो सेम है, मैं पर बहुत सारी एक्स्ट्रा हीट एनर्जी प्रोवाइड करती जा रही हूँ। वो कहाँ जा रही है? वी नो नाउ कि वो लेटेंट हीट में कन्वर्ट हो रही है एंड इट इज बीइंग यूज्ड बाय द पार्टिकल्स ऑफ वाटर इन बॉइलिंग सो दैट दे कैन overcome their forces of attraction and convert into particles of water vapor। तो इन पार्टिकल्स के पास जो एनर्जी थी, लेटेंट हीट नहीं थी, वो सिर्फ उनके बॉइलिंग टेम्परेचर वाली हीट एनर्जी थी। लेकिन ये जो पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर है, इनके पास इनकी खुद की एनर्जी तो है, साथ ही साथ इनके पास लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी है, मतलब एक्स्ट्रा एनर्जी भी है। वो एक्स्ट्रा एनर्जी लेके तो वाटर वेपर बना है। कंसेप्ट समझ में आया? एक्स्ट्रा एनर्जी लेकर ही तो वाटर वेपर बना है। क्लियर? वो दिख नहीं रही है एनर्जी, लेकिन फिर भी वो पार्टिकल्स के पास है। समझ में आया? इट इज हिडन, दैट इज व्हाई इट इज नॉट ऑब्जर्व्ड ऑन द थर्मोमीटर। तो दीज पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर हैव मोर एनर्जी एज कंपेयर टू द पार्टिकल्स ऑफ बॉइलिंग वाटर। इसीलिए जब भी कुछ भी एक्सीडेंटल हार्म होता है तो बॉइलिंग वाटर से इतनी इंजुरीज और इतना डैमेज नहीं होता टिश्यूज को या सेल्स को या कोई भी चीज को, जितना डैमेज वाटर वेपर से होता है। क्योंकि वाटर वेपर्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या पार्टिकल्स होते हैं, उनके पास ज़्यादा एनर्जी होती है। जस्ट एन एग्जाम्पल, अगर किसी पर्सन को कोई बर्न हो गया है ड्यू टू बॉइलिंग वाटर में हाथ डाल दिया एक्सीडेंटली, तो उसको बर्न होगा। लेकिन वाटर वेपर से हाथ जल गया है एक्सीडेंटली, तो उसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा सीवियर होता है, ज़्यादा डैमेज होता है। क्यों? क्योंकि वाटर वेपर्स के पास ज़्यादा एनर्जी है इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। क्लियर? So this is a very important concept, very important point to keep to remember, because it is asked in MCQs, it is asked in 1 marks, it is asked in fill in the blanks. Many times it is asked in true or false or correct the statement. It can now also be asked in assertion and reason type of questions. So you should know that particles of boiling water have less energy and particles of water vapor have more energy, and they can cause more harm when any accidental incident happens. Same way ice का भी recall कर रहे हैं, particles of ice have less energy but particles of cold water have more energy because उनके पास hidden energy भी होती है in the form of latent heat of fusion. Clear? So these two very important topics, latent heat of fusion and latent heat of vaporization, very important. प्लीज इसको बार बार रिवाइज करते रहना, नहीं तो आपको ये टॉपिक में बहुत दिक्कत आ जाएगी। ठीक है? लेकिन अगर रिवाइज किया है तो ये तो बहुत इजी टॉपिक्स हैं। फाइन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।